अगर वो कानून नहीं जाएगा तो तुम जाओगे, ये एहसास उन्हें और ये करके रहेंगे, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अगर सरकार ये कहती है कि तुम चाहे कितना भी दंगा कर लो, हम बदलेंगे नहीं, हम ये कानून वापस लेंगे नहीं, तो हमारी शांति की ताकत से उनको हराने का वक्त आ गया। अगर वो लोग गोली छोड़ते हैं, तो हम हमारी बोली से उनको थकाएंगे, हराएंगे। मेरा नाम है नूर जाहिर और आप सब लोग देख रहे हो गोहाश बैंगलोर। गोहाश बैंगलोर एक्सक्लूसिवली आपको अभी लाइव टाउन हॉल से रिपोर्ट दे रही है, जहां पर आज गांधी जी की शहादत मनाई जा रही है। ये देखते हैं कि यहाँ पे बैठे लोगों का और हमारे दोराईस्वामी जी का क्या कहना है। So, what is your take on today's incident that broke out at Jamia Millia? So, you know, when you see at 1949, we had the same incident happen in the history, and today something similar happened. What is your take on that? It is reprehensible that on the anniversary of Bapu's murder in Delhi itself, in a public place, gun culture is becoming so apparent in our nation, and we should be very worried about it, and we should start looking inwards as what has gone wrong with our nation, that within a span of 7 decades we are getting back into that vicious grind of hate and violence. So what is your message to the youth who's watching you right now? Well, I don't consider myself to be fit to give a message, but if all I have to give a message, I think, is be responsible and take the responsibility of the nation in your own hands. The nation belongs to its youth, and the youth must take responsibility today itself, because if you don't take responsibility today, you won't have a tomorrow. So how long do you think the students and every citizen who's against CAA and NRC should protest? Well, we fought for independence for 4 decades, so I don't see why we should get exhausted of protesting against our own government. So if you see the government that is in power, the campaigners are using slogans like Desh ke gaddaron ko, goli maro salon ko, and something similar of that sort happened today. So what do you have to say for those people who are in power? As long as they are in government, they will be responsible for the violence that is taking place because of their own encouragement. And so if the Prime Minister really believes that his idea of New India is going to be the New India of Gandhian values, then he should get rid of his colleagues. CAA is anti-constitutional, okay, and NRC and NPR. This will destroy our country. This will take the economy will be destroyed, just like the demonetization did. So it is to us. It is at least about 100 times. It will do damage to our country when there are so many problems. Like they came to power by assuring regarding black money and employment and the rightful price for the farmers, that they have not done. My name is Vasha. I'm a law student. I want to say about NRC and CAA. Actually, this is totally unconstitutional, because what I read in Constitution, that is like if your mother or father is born in India, the child is whether born in foreign, but you are an Indian. That is so. It is unconstitutional totally. And what I want to say, it is actually a Savarkar policy. They are trying to impose on us, and that is the thing. वैसे आज दोपहर में हमने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे जामिया मिलिया में दिल्ली में एक बंदे ने ओपन फायर कर दी स्टूडेंट, और हम यहाँ पे आज गांधी जी का शहादत के लिए जुड़े हुए हैं। आपका क्या कहना है इस बात पे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम एक्चुअली हम देशभक्त हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम गोडसे को नहीं मानते, हम गांधी
गांधी जी को मानते हैं, दैट्स वाई ये क्राउड यहाँ है और हम यहाँ पर हैं। इस बात का सबूत है कि हम गांधी जी को फॉलो करते हैं, हम गोडसे को नहीं फॉलो करते। और आज मैं एक बड़ा क्वेश्चन आप मीडिया से, मोदी से करना चाहूँगी, मीडिया के थ्रू। वो क्वेश्चन ये है कि आज तक शिवाजी नगर में गोडसे की अस्थियाँ क्यों रखी गई हैं, क्योंकि वो अखंड भारत का सपना आज भी देख रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप गोडसे की अस्थियों को क्यों आप विसर्जित नहीं कर रहे, तो उनका ये कहना था कि ये अस्थियाँ तभी विसर्जित होंगी जब ये अखंड भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट हिंदू पॉलिसी, वो एक्चुअली हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। देखिए, सीए इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही क्लियरली डिक्लेयर किया गया है, प्लस हमारे आर्टिकल्स 19 में भी क्लियरली डिफाइन किया है कि हम देयर इज अ राइट टू लिव इन दिस कंट्री एंड नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ द रिलीजन. So it is unconstitutional. That is the bottom line. NRC is something which is going to help implement CA. सो इशिता मैम, हमने आज दोपहर में आज की हेडलाइंस बनी कि एक बंदे ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुस के ओपन फायर किया। Yes. और हम यहाँ इस वक्त गांधी जी की शहादत में जुड़े हुए हैं। आपका क्या कहना है इन दो इंसिडेंट्स पे? See, जो जामिया में हुआ है दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. आज है कहते हैं यंगस्टर्स, क्यों हमें इसका रूट कॉज देखना चाहिए. रूट कॉज क्या है कि यंग जनरेशन पढ़ाई कर रही है, एजुकेशन कर रही है, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है. दे आर बेसिकली अनगाइडेड मिसाइल्स और उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है. ये जो आप लोग काम कर रहे हैं कि गन उठा रहे हैं या गोडसे को इमिटेट कर रहे हैं, दिस विल नॉट टेक यू एनीवेयर. इफ़ यू वांट टू बी अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, पढ़ाई करिए, आगे अपना करियर बनाइए. दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. जिस लीडर के बहकावे में आके आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, वो लीडर भी आपको छोड़ देगा क्योंकि वो आपके इन दुष्कर्मों से एसोसिएट नहीं करेगा. दैट इज़ माई मैसेज टू एवरी यंग जनरेशन. महत्वता नहीं है कि हम बापू को याद करते हैं या नहीं, लेकिन आज ये प्रश्न पूछना हमारे लिए जरूरी हो गया है कि क्या हम उस धरोहर के लायक रहे हैं कि नहीं, जो विरासत बापू और पंडित जी और सरदार साहब और नेताजी और मौलाना साहब हमें छोड़ के गए. क्या हम उसके काबिल अपने आप को मान सकते हैं या नहीं? क्योंकि आज जहाँ इस ये मुल्क और पूरी दुनिया बापू की शहादत की मिसाल दे रही है, वहीं उसी शहर में जहाँ बापू का कत्ल हुआ, वहाँ एक बंदूकधारी रास्तों पर बंदूक चलाकर गोलियां मार रहा. तो क्या हो गया है हमारे भारत को? एक तरफ राजघाट पर आंसुओं का तमाशा दिखाया जाता है और रास्तों पर खून की होली खेली जा रही है. ये हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है कि क्या हम 70 साल में इतने गिर चुके कि अब हमारी जो संस्कृति है वो इतनी घिनौनी बन गई कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए.